exploring the that is artificial That's why I think intelligence. DGM is the most special place. So yes, AI lab. Hello everyone and welcome to an exciting episode of DJAM podcast. मेरा नाम है रिद्धिमन, a proud faculty member of DJAM College और मेरे साथ हैं Miss Himanshi Talda. She is also a proud faculty member of DJAM College. Today we are exploring the future of education and we are highlighting some new courses which is related to AI, that is artificial intelligence, and ML which is related to machine learning that DJIM is launching in collaboration with Rural Future Technologies. Absolutely, Riddhaman. Starting in 2025, DJIM is offering a variety of specialized programs including MBA in AI and Data Science, BCA in AI and Machine Learning, and a 5-year integrated MBA in AI. And for those who are looking for the shorter commitments, we have foundation and advanced certificate courses available as well. You know what? What is truly exciting about these courses? The promise of a job offer letter at the time of admission. Yes, you heard it right. A confirmed job offer letter the moment you enroll. To give us more insights about these courses, we have Mr. Amit, who is an AI architect from Rural Future Technologies. Along with his team members, we have Ms. Muskan, she's an AI engineer. We have Ms. Ria, she's a quality assurance manager. And last but not the least, we have Ms. Divyanshu, she's also an AI engineer from Rural Future Technologies. Okay, so let's begin by understanding the bigger picture. So, Ms. Divyanshu, could you share why AI is considered one of the most transformative technologies in the modern world? What's your take on that? Okay, so first of all, let's accept that AI is no more futuristic now. It is here and changing everything. मतलब किसने सोचा था कि आप एक ही क्लिक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक ही क्लिक में अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, एक ही क्लिक में यू कैन आइडेंटिफाई द स्पैम कॉलर्स एंड व्हाट नॉट, फ्रॉम सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू मेडिकल डायग्नोसिस, एवरीथिंग इज AI अराउंड अस राइट नाउ. इफ़ आई टॉक अबाउट कि वो कैसे चेंज कर रहा है आज के वर्ल्ड में, लाइक हाउ इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग. राइट नाउ आई क्लिक्ड इन माई माइंड, एक रील में स्क्रॉल कर रही थी 2-4 दिन पहले, इन विच अ स्टूडेंट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब इंटरव्यू and he did lot of courses online, offline, higher degrees and whatnot for the job. And when he went to the interviewer for the job, interviewer straight away asked ki, okay, what are your skills? He mentioned everything, every programming language, projects and what he did till then. And then interviewer just said, okay, ये सब तो मैं AI से करवा सकता हूँ, इसके अलावा तुम्हें क्या आता है? So this is the power of AI in today's world. We need to accept and we need to change the thinking कि अब हमें इस पर ही काम करना है. Of course, other fields are, that is important of course, but we need to work with it. Okay. So sir, क्या आप हमें बेटर बता सकते हैं कि किस तरीके से AI skills जो हैं वो बच्चों को प्रिपेयर करेंगे फॉर हाई डिमांड करियर अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज? आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? Okay, मेरा viewpoint actually it's more about the work culture that we are heading towards. अगर आप देखो कि there was a time when we used to have accountants and people when computer came in. कंप्यूटर ना के almost उस काम को एक बंदे के लिए कर दिया जो जिसको करने के लिए 10 साहूकार करने पड़ते थे. अब जब AI की बारी आ रही है तो आप ये देखिए कि टेक्नोलॉजी वाइज सारी कंपनीज जितनी भी इंडस्ट्रीज में हैं वो कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं एंड दे हैव बिग प्लान्स फॉर इट. आई वाज जस्ट चेकिंग सम स्टैटिस्टिक्स. जो BMW कंपनी है 90s में दे हैव ओनली 10% एम्प्लॉइज इन टेक्नोलॉजी. सिर्फ 10% एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी जानते या यूज़ करते थे किसी भी तरीके की. 2024 में वो नंबर 30% है. और ये मैं सिर्फ एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत पुरानी है, गाड़ियाँ बनाती है, कार बनाती है, जिसमें फैक्ट्रियाँ हैं, लोहा है, स्टील है, टायर है. अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूँ तो द नंबर चेंजेस ड्रास्टिकली. जहाँ पे पहले 5 से 10% एम्प्लॉइज टेक्नोलॉजी के होते थे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आज 50% अबव है. द बिग रीजन इज वी हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाउ एंड दे आर ऑल IT बेस्ड. इट्स ऑल अबाउट सेंसर्स, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मेरा ये मानना है कि बाबू वाली नौकरी तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी. स्पेशल स्किल बची थी. स्पेशल स्किल में ये था कि हाँ तुम दिमाग लगाते हो, तुम डेटा को समझ सकते हो, तुम चीज़ों को एनालाइज कर लेते हो, पहले से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो. वो नौकरी अभी AI खतरे में डाल रहा है. और मेरा मानना ये है कि अगर आपको AI की नॉलेज नहीं है इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू टू कम्पीट. क्योंकि कंपनीज तो पोलराइज हो रही है AI की तरफ. दे आर लुकिंग एट दिस बिग अपॉर्चुनिटी.
And if you don't know what AI is or how to use it, then you are running 5 years behind with your competition. इसीलिए मेरा मानना है कि this particular thing will give an edge to all the students. उनको internationally compete करने का मौका मिलेगा. कोई ऐसा competition नहीं कि कोई जर्मनी से पढ़ा है तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कोई हमारा तमिलनाडु से पढ़ा है तो थोड़ा वीक है. कोई बात नहीं, सारे लैंग्वेज बैरियर, ज्योग्राफिक बैरियर टूट रहे हैं. And everybody is getting a chance, including girls. I mean, लड़का हो या लड़की, with AI नहीं मिलनी चाहिए था तो अभी वही सेम AI पढ़ा रहा है जो जिसके पास 10 किताब है वही. एंड दैट इज वाई मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को मार्केट में एक कदम आगे ले आने के लिए. That's very insightful, sir. Now, could you share how DJIM's collaboration with the Rural Future Technologies is basically bridging the gap between the academic education and the real world industry needs? ओके, सो रूरल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की जो पेरेंट कंपनी है रॉयल होल्डिंग्स, उसके फाउंडर जो हैं मिस्टर अंशुल रोहिल, वो हरियाणा के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है एंड ही हैज़ लाइक हिज हार्ट स्टिल इन हरियाणा डिस्पाइट ही इज इन यूएस, कनाडा, ग्लोबली अवेलेबल, बट उनका पूरा जेस्चर अभी भी हरियाणा में रहता है. उनके मन में हमेशा ये रहा है कि हाउ ही कैन लाइक गिव बैक टू द सोसाइटी, हाउ ही कैन डू अ लॉट टू एम्पावर द यूथ ऑफ हरियाणा, स्पेशली द वुमेन्स. आपको शायद बता दूं कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सर ही इज़ वेरी मच कॉशियस एंड ही इज़ वेरी मच सपोर्टिव अबाउट इट. वी हैव 60% एम्प्लॉइज वुमेन इन अ कंपनी. आई मीन इट्स रन एंड गवर्न बाय द वुमेन ओनली. तो इसी पर्टिकुलर मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए व्हेन सर केम टू हरियाणा ही स्टार्टेड सम इंक्यूबेशन सेंटर्स इन वेरियस कॉलेजेस, जिससे कि आइडियाज़ या जो भी हमारे यूथ करना चाहते हैं उनको वो प्लेटफॉर्म या वो पर्टिकुलर एक्सपोजर नहीं मिलता, वो इसके थ्रू मिले. सो जब मिस्टर अंशुल रोहिल एंड मिस्टर डॉक्टर नरेंद्र सर जब मिले एक दूसरे से और दोनों के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे वो डिसिप्लिन, सर्विंग टू सोसाइटी, एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग यूथ ऑफ हरियाणा, इसी जगह पे थे. They both had a really good understanding of the whole situation and a good they gel up together. तब ये क्वेश्चन आया कि why हरियाणा यूथ is not able to perform so good in corporate when it comes, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एथलीट होते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस्ड और डेडिकेटेड लोग अगर देखें पेट्रियोटिक्स में तो हरियाणा से ही आते हैं. तो अंशु सर का कहना था कि हमारे हरियाणा यूथ को एक्सपोजर नहीं मिलता. अगर हम उन्हें मल्टीनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स दें, अगर हम उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर देने की कोशिश करें, they can do as good as any other student maybe in Gujarat or in Mumbai. They can do better. Question ये था कि the discussion went on that there is a huge gap. जो हमारे colleges हैं वो डिग्री देते हैं, पढ़ा देते हैं, और फिर जब नौकरी की बारी आती है तो बच्चे को फिर से कोई ना कोई सर्टिफिकेट करना है या कोई ना कोई स्किल डेवलप करनी है, तभी वो फिट हो पाएगा इंडस्ट्री के अंदर. तो एक बहुत बड़ा गैप था. अकेडमिक्स पढ़ा रहे हैं पर इंडस्ट्री की डिमांड इज डायनेमिकली चेंजिंग. Every year something new comes, the student has to adapt. तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए this collaboration happened. दोनों ने डिसाइड किया कि we will work on this, we will see what we can do for Haryana and their students and how we can bridge this gap. Okay sir, as we move forward, अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया, अपने ऑडियंस को बताया that DJIM has introduced 3 new courses, which is MBA in AI and Data Science, BCA in AI and Machine Learning, and MBA a 5-year integrated program in AI. So how are these courses according to you different from the courses that are already available in the market? जब DJIM और Rural Future Technologies ने collaborate किया, the whole sole focus in our mind was कि हमें अपने बच्चों को कैसे इंडस्ट्री रेडी करना है, कैसे हम इन्हें मार्केट रेडी करें, कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा करिकुलम, हमारा कोर्स should cover all the corners and nooks that is required to do the job. मार्केट में बच्चे को ये नहीं लेना चाहिए यार ये चीज़ मैं रेडी नहीं हूँ या इस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं हूँ या मे बी दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी कैन डू. These courses, the AI is like bread and butter going to be in the future for everyone. This is something हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, right? बट किस तरीके से, I mean जो भी बच्चा आएगा हम उसको किस तरीके से बच्चे की स्किल डेवलप करें, बच्चे की नॉलेज इंक्रीज करें और कैसे हम उसका इतना कॉन्फिडेंस बूट करें सो दैट ही कैन स्टैंड एंड से कि नहीं भाई आप हो गए आईटी से, आईएम से, मैं भी फरीदाबाद से हूँ, बराबर बैठूंगा, कम नहीं पढ़ूंगा. द थिंग वाज कि
जो करिकुलम है जो इन कोर्सेज का, दैट वाज डिजाइन टू कीप हाउ द इंडस्ट्री इज गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर। अगले 2-3 साल में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या नीड क्रिएट होने वाली हैं, कैसे लोग रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह की जॉब्स होंगी, वो सब सोचते हुए ये पूरा करिकुलम डिजाइन हुआ। प्लस हमारा होल सोल फोकस हैंड्स ऑन पे है। थ्योरी तो सब किताबों में लिखी है, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, पर जो मेन फोकस ये है कि हाथों से हम कितना कर सकते हैं, ताकि जब कॉलेज से बच्चा जब किसी ऑफिस में पहुंचे तो उसको ये फील ना हो कि मैं किसी और कंप्यूटर बैठ गया। Right. इसीलिए ये कोर्सेज डिफरेंट हैं, सिमिलर कोर्सेज है जो किसी और यूनिवर्सिटी में। Okay, so Miss Himanshi already introduced about these courses. So let's dive deeper into one of the course, that is MBA in AI and Data Science. So sir, आप बताइए कि what will be the uniqueness of this course? What makes it stand out in the market? What is your viewpoint on this? In my opinion, I have seen the syllabus of the course and I was really impressed by the effort done by the DGM team and Will Future Technology team together. The uniqueness about this course is they have kept things very much simple and straightforward. The first year of MBA will be straightforward MBA, no deviations, fundamentals हैं, सब कुछ है, आपका जो management के principles and foundation जो आपको चाहिए, it's there. And from second year onwards, there are specializations, and even in those specializations, they have introduced AI in each one of them. तो बच्चा अगर बोले कि मुझे AI भी नहीं करना, मेरे को जॉब ही AI करी, उसके बावजूद भी अगर वो मार्केटिंग में चाहता है, HR में चाहता है या किसी और कोर्स में स्पेशलिस्ट में आता है, उसको AI का इनफ नॉलेज करिकुलम के अंदर हमने बिल्ड किया हुआ है कि उसको मार्केट रेडीनेस के लिए वो तैयार रहेगा, कि मार्केट डिमांड के लिए वो रेडी रहेगा। मोर इम्पोर्टेंटली जो वेटेज है MBA AI के सिलेबस का, इट्स 50% क्लासरूम एंड थ्योरी and 50% totally hands-on project and industrial internship। आप कोशिश करके भी छुप नहीं सकते बिना काम करे। आप कितना भी किताबों के बारे में नॉलेज रखते हो, लेकिन जब तक आप कॉन्फिडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं करते, दिस कोर्स विल मेक यू डू दैट। वो आपको जबरदस्ती उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ जिनसे आप डरते हो। सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये है कि हमें कॉन्फिडेंस, रिलायंस और नॉलेज इंक्रीज करनी है। और MBA में फंडामेंटल आपकी रेडी है, AI की नॉलेज आपकी रेडी है, और उसके बाद अगर एडेड एडवांटेज में इंडस्ट्री और इंटर्नशिप मिल जाए, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिल जाए, तो वो बच्चा मार्केट लिए ऑन दैट डे ही इज रेडी। कोई भी कंपनी उसे दोनों हाथों से वेलकम करेगी। I want you to answer that what makes DJIM the best choice for students to opt for this course, particularly in DJIM only. What's your take on that? I would say that the approach and the thinking of DGM chairman and the principal is way ahead of his time. More importantly, उनकी सोच मार्केट में क्या होने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस है, ताकि वो पहले से पहले अपने बच्चों को तैयार कर सकें। DGM के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, they have a state of the art AI lab बनाई है, and they also have world class faculty, I would say global faculty, to be very honest. Professors from various different countries, various different universities will be sharing their time with the students of DGIM. उस तरह का कोलैबोरेशन, उस तरह की डेडिकेशन टुवर्ड देयर स्टूडेंट्स शायद ही कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी करता होगा। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक DGIM इज द मोस्ट स्पेशल प्लेस टू डू दिस MBA in AI course. Okay, now let's move on to the BCA program, which is designed for the undergraduates. So मुस्कान, आप बताइए कि क्या ऐसी skills हैं जो एक student इस program से ले सकता है, and how these skills will align with the current industry trends. Okay, so BCA in AI and ML is a 4-year program which will have 8 semesters. तो इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम बिल्कुल बेसिक से ट्रेन करना स्टार्ट करें, बिकॉज कुछ ऐसे बच्चे होते हैं who doesn't have like technical background, right? तो उनके लिए we'll just start from the basics, जो बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IT होते हैं, सच एज कंप्यूटर नेटवर्क, सर्वर्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, बेसिक से टू द एडवांस्ड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एंड सो ऑन। Okay, so sir, as we already discussed with 2 courses, there is one more course, that is 5-year integrated MBA in AI. So could you elaborate the dual degree advantage and how it fosters entrepreneurial mindset? Okay, so first of all, I would like to say
कि DGIM की हवा में ही entrepreneur mindset है. You have all the facilities here, all the professors here, world class incubation center. तो यहाँ पे हर बच्चे में entrepreneur mindset तो होता है. बट अगर MBA फाइनल की बात की जाए तो कोई बच्चा 12th पास करता है, या मैं ये बोलूँ कि स्कूल से निकलता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं. उसको आने वाले ज़माने का एलॉन मस्क बनना है, या इंडिया में बात करें तो अश्विनी ग्रोवर बनना है. एंड लुक एट इंडिया, हम 2025 में हैं. वो इंजीनियरिंग और डॉक्टर वाली नौकरियाँ, वो पर्टिकुलर माइंडसेट पेरेंट्स का भी नहीं रहा. इवन दे वांट कि उनका बच्चा एक्सप्लोर करे, जो चीज़ों में उसका दिमाग लगता है, जो चीज़ें उसे इंटरेस्ट देती हैं, वो उस पर फोकस करें. एंड मेनी पेरेंट्स आर हेविली, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स encourage their children to do that. अब इमेजिन करिए कि आपके बच्चे को एक ऐसा माहौल मिले, आपका एक स्टूडेंट आया, कोई बहुत सारे एम्बिशंस लेके, और उसके पास 5 साल की मैनेजमेंट का पाथ है, पढ़ाई है, गोइंग थ्रू ऑल द स्मॉल टाइनी ट्रिंकेट्स ऑफ मैनेजमेंट, वो सारे तौर तरीके सीख रहा है, ईच एंड एवरीथिंग. और वहीं पे उसके माहौल में वो देख रहा है कि उसके सीनियर्स इंक्यूबेशन सेंटर में अपना अपना आइडिया डेवलप कर रहे हैं. उसके साथ वाले जो MBA वाले फ्रेंड सीनियर्स हैं, कोलीग्स हैं, वो AI लैब में जाके नए नए एक्सपेरिमेंट्स या नए नए टेक्नोलॉजी पे इनोवेशन की तैयारी कर रहे हैं. क्या इतने हेल्दी इन्वायरमेंट में ही विल बी नर्चर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? ये तो क्वेश्चन है ही नहीं. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट. बट 5 साल के MBA इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट टेक्निकल क्यूरियोसिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा मौका है. इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट. He will have all the tools, all the resources, and the management by his side to make his dream to reality. Okay, so we all know in the current scenario, it is very difficult for everyone to commit to a full-time course. So DJIM has offered a few certification courses. तो रिया, आप हमें बता सकते हैं कि what is the difference between the foundation courses and the advanced certificate courses? Absolutely right. You just mentioned that students are not committed to a long time course just because of the fact कि आजकल की generation बहुत fast हो रही है, so everybody wants everything in a quick and go. So उसके लिए DGIM ने और Rural Future Technologies ने collaboration में 2 certification courses निकाले हैं. पहला है फाउंडेशन कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स रहेगा. पहले के 2 मंथ्स में हम लोग क्लासरूम टीचिंग को प्रमोट करेंगे. फॉर द सेकेंड 2 मंथ्स हम लोग क्लासरूम के प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे. जो बाकी के 2 हमारे मंथ्स होंगे, उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रियल टाइम ट्रेनिंग ओरिएंटेड पे स्टूडेंट्स को वर्क करवाएंगे. एंड अगर हमें इसी में एडवांस कोर्सेज की बात करनी है तो उसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स होगा, जिसमें कि 2 वीक्स के लिए हम लोग क्लासरूम टीचिंग को एम्फेसाइज करेंगे. एंड जो बाकी के जो हमारे 10 वीक्स हैं, उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं कम टाइम में एक बेटर डिग्री ले सकते हैं एंड अपने रिज्यूमे को एनहांस कर सकते हैं. So I think less is more. So what do you have to say about DGIM's state-of-the-art AI lab? Okay, so I would say that जो Indian education policy में improvements हुए हैं over the period of time, वो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हुए हैं. Being in India, हम लोग इंजीनियर को बना रहे थे, पर वो इंजीनियर किसी दूसरे इंजीनियर को बना रहा था अपना काम करवाने के लिए. I mean, आप कैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं अगर आप अपना स्कूटर ठीक कराने खुद एक मैकेनिक के पास जा रहे हो, या कैसे कंप्यूटर इंजीनियर हो जो अपना खुद का डेस्कटॉप नहीं बना सकता. एंड दैट्स व्हाट इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज कि गैप है. दिस इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग, एंड दैट्स वेयर द गवर्नमेंट एम्फसाइज एंड स्ट्रिक्टली मेड कंप्लायंस एंड पॉलिसीज टू हैव द लैब्स एवरीवेयर. और उसी का रिजल्ट है कि आज के डेट में द क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स आर वे बेटर देन बिफोर. एआई लैब का रीजन आई वुड से दैट मेनली है कि हम एआई से बातों से नहीं पढ़ा जाते, हम करवा के पढ़ा जाते हैं. मोर इम्पॉर्टेंटली, हम इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच की जो दूरी है उसको मिनिमम से मिनिमम करना चाहते हैं. जो बंदा स्टेट ऑफ द आर्ट एआई लैब में काम कर रहा है, ही इज यूजिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर जो रियल वर्ल्ड में बिग 5 और बिग 4 कंपनीज यूज करती हैं. तो जब वो स्टूडेंट एआई लैब में ये सारी चीज़ें हैंड्स ऑन होगा, तो सोचिए जब वो किसी कंपनी में जाएगा, ही इज प्रोडक्टिव फ्रॉम डे 1. उसको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत नहीं है. ही विल बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी कंपनी, एंड दैट्स व्हेयर एआई लैब हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेन दिस एडवांटेज. So sir, जैसे कि आप हमेशा डे टू डे लाइफ में अपने स्टूडेंट्स से बात करते हैं, सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन कि
कोई भी कोर्स लेने से पहले स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मैं इसके बाद क्या करूँगा, व्हाट जॉब विल आई गेट, या फिर मैं क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं ग्रास्प कर सकता हूँ. सो फ्रॉम आवर डिस्कशन टिल नाउ इट इज़ क्वाइट क्लियर कि एआई ही फ्यूचर है. बट आप क्या क्लैरिटी और ला सकते हैं कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो स्टूडेंट्स एम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दीज कोर्सेज? आई वुड से कि जो भी स्टूडेंट्स जिसके MBA करता है उसके दिमाग में होता है कि मैं कहीं पे जाके मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर बनूंगा. और जैसे कि AI रेवोल्यूशन हम डिस्कस कर ही रहे हैं, आ गया है. आई वुड रिकमेंड कि अगर वो AI ओरिएंटेड या AI बेस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स पढ़ता है, ही कैन बी अ फैंटास्टिक लॉजिस्टिक मैनेजर with a lot more productivity and will be taking a lot of, he will be a lot more efficient also. जो उसके colleagues या किसी को भी काम करने में 5 दिन लग रहे हैं वो 5 घंटे में कर देगा उसको. More importantly, anybody who knows AI, how to use AI, I mean they are the highest valued candidates in market. आप एक एवरेज MBA वाला कहीं भी जॉब में जाता है उसको 3 लाख 3.5 लाख से पैकेज स्टार्ट होता है. बट कोई भी स्टूडेंट जिसको AI की नॉलेज है और ही नोज हाउ टू यूज AI, एडेड विद अ टेक्निकल नॉलेज और अ मैनेजमेंट नॉलेज, उसका पैकेज मिनिमम से मिनिमम 6 लाख से स्टार्ट होगा. और आई थिंक 50 lakhs will be the limit, or maybe more than that. Who knows? This is some of the like standard market rates हैं जो इस समय रिक्वायर्ड है. और एक तो जोक भी आ रखा है कि आप क्या जॉब करते हो, वो बोलते हैं मैं जी ChatGPT चलाता हूँ, कितनी सैलरी मिलती है 50 लाख. तो people are doing a lot of wonders, you know, with this new AI that's coming in. Right. And जॉब अपॉर्चुनिटी का वैसा है कि देखिए उसमें BC अगर किसी ने किया है तो ही कैन बी ए मशीन लर्निंग इंजीनियर, ही कैन बी ए डेटा साइंटिस्ट, और किसी ने MBA किया है then he can be a, you know, market research analyst, a consulting in fintech, somebody who can do risk management or risk analysis in a much better way. Or अगर if somebody is like totally into HRM, then they can be you know, a good compensation manager or maybe a good company administrator. And these people will be earning a lot more revenue than your average MBA guy. These people will be, you know, bringing in more profits to the organization, and that's where the success lies. So yeah, it's a huge open market full of opportunities. अभी तो AI आई है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है. Right. Sir, as you mentioned that AI is quite new and it's trending in the market as well. But still, our students are quite uncertain about these courses. So what advice you want to, you know, give to these students so that they can make an informed decision? What's your take on that? Okay, so first of all, मैं ये बोलना चाहूँगा कि AI is not a new technology. It was there since 80s, but it was very costly. बहुत महंगी थी, बहुत कम कंपनीज के पास थी. I mean, अगर आप देखोगे कभी JP Morgan का R&D चैम्बर या BlackRock का रिस्क मैनेजमेंट, they were there and they were flourishing in 2000s and 21st century में. जो रेवोल्यूशन अब आया है वो ये आया है कि we were able to break through with the processing power, जिस पे सारे मॉडल्स रन हो सकते हैं, and that's why it is accessible to everyone. और अगर आप ये सोचो कि अगर आप AI यूज़ नहीं करोगे तो आपका दोस्त भी यूज़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होने वाला. They will be using ChatGPT, they will be using Jaan Setu, they will be using whatever they can gets their hands on, ताकि उनका काम आपके काम से बेटर. अब नया बोलने से किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती. When the wheel was invented, everybody thought क्या चीज़ बनी है, मैं तो सामान सब उठा के ले तो जा रहा था. जब एटम बना तो दुनिया को लगा कि हम तो कभी बना ही नहीं पाएंगे. पर उसके बाद फिर क्या हुआ, जिसने बना लिया था पहले 10 साल के अंदर उन्होंने बना लिया, उसके बाद लोगों को 30 साल लगे बनाने में. Even India को 1990s में atom bomb मिला. Same goes for AI. If you are thinking other people are not going to use it, they will. About these courses in DGIM, आप एक कोर्स के करिकुलम को देखिए. It's so beautifully crafted. MBA in AI में 50% completely MBA की बात है. It will hone your skills on management side. It will improve your confidence, and 50% course is totally AI, which is totally hands-on, which gives you enough skills to compete with any other AI engineer in the organization. आप किसी conversation में irrelevant होगे ही नहीं. You will be leading the conversation, you will be participating and be informed about it. और फिर भी अगर uncertain हो कि MBA करना है या नहीं, या MBA AI करना है या नहीं, this course comes with 100% job guarantee. It's a confirmed job offer will be there with this course. I don't see anybody has any other reason not to do this course.
And trust me, DJM is the best place to do this. To all our listeners, admissions for these courses are open now. Don't miss the chance to secure your career in the dynamic world of AI. Visit our website or contact our admission office for more information. Thank you so much, Mr. Amit sir, and all the team members for sharing your valuable insights. And to all our listeners, we hope to see you soon on campus. Thank you.